चाहिए गेम, बट ये ओपनिंग तो स्टैंडर्ड है राइट, इसके ना नया क्या है? Just wait. E4, E5 is common, yes. But what about this? दिस इज नॉट कॉमन। This is not common, right? Can you tell me just by playing this move, which basic principles white is violating? Like विच बेसिक? basic principle, or you can say common rules that we follow by heart in chess, that white has violated by सर playing, the last move. थोड़ी आगे की चीज में तो इसके थोड़ी सी समझ में आ गई क्या हो सकता है एक मूव चल के। Hmm. तो जब आप कासिल करोगे आपका किंग ऑलरेडी वीक स्पॉट पे आएगा, अगर आप किंग साइड कासिल करोगे। But हाँ। normally हम क्या करते हैं अध्यक्ष? So these pawns that we have, for example, यहाँ पे देखो ब्लैक के ये जो पॉन्स हैं, ठीक है, इन फ्यूचर दे विल बी द शील्ड फॉर द किंग, दैट इज़ वन थिंग, ठीक है. सेकंड थिंग इज़ आफ्टर, तो अभी हमने क्या किया, जो शील्ड वाला पॉन है वी हैव ऑलरेडी पुश्ड इट नाउ. सो जब हम कैसल भी कर लेंगे, सो आवर किंग विल बी वल्नरेबल अलॉन्ग दिस डायगनल, यस है ना. सर। जो ब्लैक का बिशप है वो इजीली यहाँ पे आ सकता है, जो ये ब्लैक बिशप है, ब्लैक बिशप कैन इजीली कम हियर टू अटैक आवर सर किंग. लेकिन फिर व्हाइट दूसरी साइड भी तो कासिल कर सकता है। यस, यस, but but generally in this opening he castles king side. I'll tell you the reason. So what white is doing is, white is saying that yes, I have some weakness, I have opened this diagonal and I have weakened this diagonal and this diagonal, because queen can also come and give check, right? But he's saying that I'll attack, I'll just attack and attack, and I'll checkmate you, right? This is what he's trying to say. I'll tell you how he will be able to attack. Develops the knight. Why he develops this knight? Like, why not just, व्हाट? like, in this game, white here develops his knight, right? Knight को develop किया, protecting this. बट अगर क्या होता कि वाइट कहता कि नाइट को तो बाद में डेवलप करते हैं, अभी एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है, लेट्स टेक इट, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड? सर उसका पॉन स्ट्रक्चर वीक हो गया। उसका पॉन स्ट्रक्चर वीक हो गया? नहीं, उसका पॉन स्ट्रक्चर तो ठीक है, हमारा सर वीक हो गया, वाइट का. व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर वीक हो गया हाँ, राइट। ये तो बट एक्स्ट्रा पॉन है ना, इट्स ओके, मतलब वी आर ऑलरेडी लाइक प्लस. इन द नेक्स्ट मूव आई विल प्ले दिस, अगर मुझे मौका मिला तो आई विल प्ले दिस मूव. सो ये जो है इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा पॉन से. सो और ये जो पॉन है, दिस विल नॉट अलाउ नाइट टू डेवलप हियर. बट ब्लैक हैज़ अ बेटर मूव, ब्लैक हैज़ अ गुड रिसोर्स हियर. Instead of just going about developing pieces, what black can do is black can just give a check. Simple. I told you, there is this weakness that was created by playing pawn from here to here, यस सर। right? Now black has a good opportunity to exploit that. Normally I have seen kids doing this. They're like, yes, we have saved our king, no, now queen cannot check us anymore. Then suddenly they'll realize, oh, there's another check, our pawn has fallen, और अब check भी आ रहा है, ओ रुक भी गया. Everything went downhill right from here. Like, अब क्या करें, check block करेगा and just capture. Yeah. So that's why white did not become greedy, but instead opt for developing the knight. Why? Because now this is protected. अगर आपको याद होगा पिछले वेरिएशन में क्वीन ने यहाँ पे ब्लैक क्वीन गिव चेक हियर एंड देन कैप्चर्ड हर पॉन ना, बट इस केस में अब नहीं कर सकते. लाइक अब मैं इसको मार दूंगा नेक्स्ट मूव पे, तो ब्लैक कैन नॉट डू द सेम, इट कैन नॉट जस्ट गिव चेक एंड पिक दिस अप, यस सर। राइट?
Okay. ठीक है. Developing moves. Both sides are playing developing moves. This move. Okay. Let's talk about this move. Black played this move. Yeah. What do you think about this move? Do you think it's a good move, bad move, amazing move? I have no idea how this move is, but it's a Let's pawn structure. see. Pawn structure is fine. Pawn structure is fine. It's fine. It's not like it's not a big deal. Pawn structure is fine for both sides. Look for something even more important. Uh, So, what is the most important thing in a chess game? उसका उसका सेंटर स्क्वायर का पूरा कंट्रोल ही चला गया. Right. See, here, if we look हाँ. at this position, so when we talk about center, we generally talk about these squares. Yes, So, sir. earlier, out of these four center squares, white had pawn on one, black had pawn on one. Yes, sir. But now, black do not have any pawn in the center. Black have 0 pawn now. और अब हम क्या करेंगे, देखो पहले एक 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 था तो उसका 1 से 0 हो गया सेंटर हाँ. पान, बट वाइट का 1 से 2 हो गया. दो कैन यू हो से गया. दिस? कैन यू से दिस? Yes, sir. क्योंकि मैंने अगर सोचा तो अगर ये बात पॉन यहीं पे होता, अगर ये तो पॉन, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ा पाते. ये कभी पॉन आगे आता ही नहीं. Yes, sir. Try to say this, right? So maybe he could have just defended by playing d6 this pawn, not giving up the center. But he played this and oh my god, look at the center now. Out of these 4 squares, we have pawn on 2, right? Okay, so black had to move his bishop. He decided to sort of pin the knight, Okay. right? Now our bishop captures this pawn, Okay. बिशप अच्छी जगह पे भी आ गया. right? बट क्या अगर जब यहाँ पे ब्लैक का पॉन होता, इमेजिन ब्लैक का पॉन इधर है, ना. बिशप यहाँ पे क्या आ पाता? नो. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉन इन द सेंटर. वाई? टू रिस्ट्रिक्ट द अपोनेंट्स पीसेस. अगर ब्लैक का पॉन यहाँ पे होता, यहाँ पे दिस एट दिस प्लेस, Yes, तो मेरा sir. मेरा बिशप कभी यहाँ पे आ ही नहीं तो पाता, भी आ ही नहीं सकता. राइट? सो पहले वो पॉन मुझे रिस्ट्रिक्ट करता एज वाइट, वो पॉन मुझे रिस्ट्रिक्ट करता, बट अब उस पॉन है ही नहीं, तो आई हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड. See, these are very small things, Atish, but try to see this, that even these small things will create such a big advantage for you. You will see this, how devastating this is going to be. This one simple move, how devastating it's going to be for black. Okay, so he played this. Now he's trying to gain the center. He's like, okay. So as a rule of thumb, so whenever we talk about center, like there's this general saying that you should have at least one pawn in the center, है ना? So this knight is pinned, so he has set up this pawn now. For now he has. So now white has 2 options here. What are the options? Either he can just take the pawn. Yes, he can buy 2 pieces. What decide He can buy 2 pieces, or he can push the pawn. Yes. Right. So let's try to see कि उसने यहाँ पे मतलब क्या करना चाहिए, वही सोचते हैं थोड़ा सा. Should we capture this pawn or should we push our pawn? ठीक है. So imagine that I capture this pawn. Imagine for a moment. Okay. ठीक है. So first of all, he can just take it with the queen, Yes, sir. or he can just move his knight तो and take it with the pawn की जगह knight. तो क्वीन आ गया, तो बहुत ज्यादा पावरफुल पीस आ गया. Yes, but एक better approach उसके पास है, rather than taking with the queen, because that drops this pawn.
what he'll do is he can just get back knight ko piche, he can get his knight back and then capture here with the knight. Point is, black can place a minor piece here, knight or a bishop here, and we will have, as white will not have anything, any pawn to kick the knight or any piece that is placed here, right? क्योंकि ये वाले pawn side से हट गए. अब black इस जगह पे कोई भी, for example, I'm just doing it, this is random thing है ना, but for example I'm just giving an example. So this knight can never be kicked. He can later support it with, let's say, if like white just castles, he can just support it with the other knight. Yes, sir. And of course, there was better move in this position. You can just take the knight, but that is not what I'm trying to teach you here. But what I'm trying to tell you here, that this knight you protect it with other knight, and this knight cannot be kicked by a pawn. So that is the important thing, right? Okay. So that's why. So वो हमने consider कर लिया. Okay, we considered this move. Now let's consider this move. So on the first go we see, अरे यार हमारा बिशप तो ब्लॉक हो गया है, बिशप ब्लॉक हो गया है. Yes, sir. राइट. तो मेरा एक पीस ब्लॉक होगा, बट देन आई सॉ कि यार ये जो नाइट है ये भी तो यहाँ नहीं आ सकता. मेरा पीस ब्लॉक हुआ, उसका भी पीस ब्लॉक तो हुआ ही है एक तरीके से, अगर मैं देखूँ तो. मतलब मेरे मूव के अप साइड भी हैं, डाउन साइड भी हैं, तो आई एम इवेलुएटिंग अप साइड और डाउन साइड दोनों. एक चीज़ तो ये मैंने देखी. सेकेंड थिंग मैंने ये देखा कि अब मेरा जो बिशप है, आई कैन प्लेस माई बिशप हेयर एंड इट्स वेरी पावरफुल. Yes, sir. Very, very. वेरी पावरफुल. और कुछ चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो. एक और चीज़ है, देखो, ऑल दो मेरा बिशप भी थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि अब ये ब्लॉक ही है. इट कैन यू नो ऑलवेज गो हेयर, राइट. बट अगर ये नाइट जो है, अगर ये यहाँ नहीं आ पाया तो नाइट यहाँ आ जाएगा. तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, उससे क्या प्रॉब्लम होगा, ट्राई टू सी दैट. उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं अपना बिशप यहाँ पे ले आऊँगा, राइट, बिशप यहाँ पे ले आऊँगा, सो आई विल हैव सो मैनी पीसेस अटैकिंग द किंग साइड, और ये नाइट यहाँ पे है नहीं. सो दिस नाइट हियर एट f6 इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ द किंग साइड, बट वो नाइट वहाँ पे आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ द पॉन. सो हमने प्रोज और कॉन्स दोनों काउंट किए. कॉन ये है कि हमारा बिशप ब्लॉक हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं हो रहा है. ही हैज़ सम फ्रीडम, दैट इज द कॉन. और भी फ्रीडम ले सकता है अगले G5 पे जाके. राइट, दिस इज द कॉन बेसिकली. ये मतलब नेगेटिव है. पॉजिटिव यह है कि वी आर स्टॉपिंग द नाइट फ्रॉम कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन अटैकिंग हिज किंग. और हमारा बिशप काफी अच्छी जगह पे आ सकता है. वाइट वाला, यस, दीज आर द पॉजिटिव थिंग. तो हमने जैसे देखा कि यार ये पॉजिटिव चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा है नेगेटिव से. वाज लाइक ओके. ओके. यहाँ पे ब्लैक ने ये मूव चला. अब इस मूव के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. ये मूव जो चला ब्लैक ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों चला. उसका बिशप अभी ब्लॉक दी और वो 19 को Yes. कर रहा जब वो पहले कर रहा था. see, it's so obvious to you, right? Yes, sir. And it was not obvious to him, right? बेटर मूव क्या होता? अच्छा, ये नहीं होता. What was the better move in this position? I think अगर बिशप को ही चलना है तो you could move on F5. Yes, yes, that's the right way. Why? I'll tell you. अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा क्यों. ठीक है, अभी जैसे उसने चला है चलते हैं, बट जस्ट नो दैट दिस इज ब्लॉक्ड, यू नो, इट्स अ वेरी बैड बिशप. सी दिस. बहुत अच्छी जगह पे आ गया सर हमारा बिशप. बहुत अच्छी जगह पे बिशप आ गया. ना इमेजिन इन द पास्ट मूव वी हैड प्लेड F5, तो क्या मैं यहाँ पे बिशप को चल पाता? ना सर. नहीं, ये बस कैप्चर कर लेता उसको. हाँ. Let me draw a good arrow, यार. Like I'm drawing arrows with the touchpad, and it's very difficult to draw right. Like very difficult to draw, you know, arrows in right way. ठीक है. Now he would have just captured here, right? तो हमारे पास अटैकर हमारा कम हो जाता वाइट के पास, राइट.
बट क्योंकि इसने ये मूव नहीं चला, विल सी द कंसिक्वेंस ऑफ दिस मूव एज वेल। ठीक है। सर कासल भी कर लिया अब तो। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस मूव? सर सेमी ओपन फाइल पे आ गया और ब्लैक का पॉन है सामने, तो ब्लैक के लिए बेकार है। Right. So normally beginner players, what they say is, okay, what's the point of this move? You know, all the action is happening on king's side. Let me try to find a mate. But the point is, like, rather than using that thinking, oh, I have to mate. The better thinking is to have small improvements in your position. ठीक है। एज अ रिजल्ट आपकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली विल हैव वेरी गुड चांसेस टू चेकमेट योर अपोनेंट। ओके। है ना। सो अभी क्या हुआ है, देखो रुक जब यहाँ पे था इट वाज कवरिंग द स्क्वायर, है ना। अगर हम देखेंगे इसकी पावर कितनी है, पावर इज बेसिकली हाउ मेनी स्क्वायर्स इट कैन सर कवर। 0, क्योंकि एनिमी टेरिटरी में एक भी स्क्वायर नहीं कर रहा है। राइट, नो स्क्वायर इन एनिमी टेरिटरी। बट अब और देखो अचानक से बहुत ज्यादा पावर हो गई। 3 4 4। now it's controlling everything now on this file B file. So now black played this move and of course you can see now कि ये जो weakness यहाँ पे बन गई है, पहले उस knight को support था but this knight is not supported by a pawn now, नहीं, हाँ। है ना। so he is creating some weaknesses, but let's see. so ये move क्यों किया white ने, like what do you think about this move? आई थिंक कि वो अपनी किंग थोड़ा सा लाइक डेवलप करना चाहता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें कि देखो सारे पीसेस को हमें डेवलप करना है। डेवलप बाय डेफिनेशन मीन्स कि आपको जो ये सबसे पीछे वाली लाइन है ना, जो सबसे पीछे वाली लाइन है, यहाँ से हटा देना है पीसेस को। सर बताया था। हाँ मतलब है ना, तो बस यहाँ से चाहे एक ही मूव चलाओ, इट्स अ डेवलपिंग मूव। ठीक है, मतलब ये रुक के लिए इट्स नॉट लाइक दैट। रुक के लिए ये है कि बस वो कनेक्ट हो जाए, दैट मीन्स द रुक्स हैव बीन डेवलप्ड, राइट। और अभी देखो रुक्स कनेक्ट हो गए हैं। यस सर। सो नाउ दिस रुक कैन स्विंग हियर अगर ज़रूरत पड़ी तो, बट क्या यहाँ पे कर पाता ये रुक? क्या यहाँ पे आ पाता ज़रूरत पड़ी तो? नहीं ना, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक यू आर मेकिंग अ वे फॉर रुक, यू नो। So it becomes easier to travel. If I give you an example, let's say there is this battle that is going on. Imagine कि there is this war that is going on between two kingdoms. ओके। ठीक है, जहाँ प्लेस पे वॉर चल रही है, ठीक है, जिस प्लेस पे वॉर चल रही है, ठीक है, उस प्लेस पे आपको मान लो you need to provide them with food, you need to provide them with medicines and all those kind of thing, right? जो आपके सोल्जर्स हैं उनको, राइट। सो ताकि ज़रूरत पड़ने पे जिसको भी मेडिसिन चाहिए उसको मिल जाए इजीली, है ना। बट लेट्स से अगर आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है, लेट्स से पेड़ गिरे हुए हैं रोड पे, जिस रोड से आप ये सारा सामान लेके जा रहे थे अपनी आर्मी को प्रोवाइड कराने, देर आर, या तो रोड ही टूट गई है मान लो, हाँ। है ना, तो क्या वो राशन पहुंच पाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी? इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। रोड को ठीक करते आप पेड़ को उठा दो तो फिर पहुंच जाओगे। हाँ, बट उसमें टाइम लगेगा। मतलब इमीडिएटली वैसे अभी ज़रूरत नहीं है राशन को। हो सकता है वो लोग अभी सपोज मॉर्निंग का टाइम है और रात को वो लोग खाएंगे या मेडिसिन की ज़रूरत उनको पड़े, है ना। तो अब क्या है, तो या तो हम ऐसा कर लें कि चलो वेट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम पेड़ वेड़ उठाएंगे और फिर जाएंगे, बट उसके तब तक तो लेट हो जाएगा ना। तब तक तो जिनको मेडिसिन चाहिए होगी वो मर जाएंगे अगर बहुत सीरियस इंजरी है तो, राइट। सो इट्स लाइक दैट। अब यहाँ पे हो सकता है कि जब मैं अटैक करने जा रहा हूँ, अब अटैक मेरा फुल फोर्स में है, तब मैं इस रुक को लेके आऊँ, मतलब इसको ये ऑप्शन प्रोवाइड कराऊँ, फ्रीडम प्रोवाइड कराऊँ कि रुक यहाँ पे आ सकता है, राइट। या फिर मैं अभी कर लूँ ताकि जब भी जैसे भी मुझे ज़रूरत पड़े तुरंत एक मूव में रुक आ गया मेरी मदद के लिए, है ना। तो इट्स लाइक कि क्वीन अभी तक एक ऑब्स्टेकल थी हमारे रास्ते में, जिससे हमें ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो नहीं हो रही थी। अब हो सकता है इस रुक को मैं अपने अटैक में इस्तेमाल करूँगा। आई एम नॉट डूइंग इट,
है ना। ऐसा नहीं कि लोग लड़ रहे हैं वो साथ में एक एक मेडिसिन साथ में खाए जा रहे हैं, अभी उनको ज़रूरत नहीं है, बट दे नो दे नीड इट इन फ्यूचर। और वो चाहते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े तो इमिडिएटली उनको मिल जाए वो चीज़, वेट ना करना पड़े फिर, राइट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और फ़ायदा इसका ये हुआ है कि ये जो बिशप है क्वीन है, इनकी बैटरी बन गई है। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड। ठीक है, वाह, मतलब इससे खराब मूव कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इससे खराब, इट्स लाइक कि यू आर पुटिंग योर हैंड इन लायंस माउथ, सिंपल। या ही इज लाइक, जस्ट सी हाउ मेनी डिफेंडर्स दिस किंग हैव। एक नाइट होता था यहाँ पे, वो नाइट है ही नहीं। ना। ही हैज वीकन्ड हिज pawn स्ट्रक्चर। Yeah, you can laugh because it is this move is worthy of criticizing. It's a very bad move. And you know what White did here to punish Black for his bad play? Wow. And 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 this is something any strong player would do in a heartbeat. He will see this position and he'll like, is Black stupid or what? And without thinking he can just do this because it's so powerful position. It's such a powerful position. Of course, Black had to take it, otherwise he'll be pawned down for no reason. look Takes. पे checkmate का threat आ रहा है. Now this is a checkmate threat with the bishop. हाँ. Black decides to block it with the knight. Okay. And we are like, okay, no. One more threat is there. Try to try to try to solve this now. Try to save this now. And the opponent is like, "Ki, theek hai." He's basically making a room here. Okay. Idea is that if you give a check, he'll go here and Okay. of course he can take the piece as well here. It's like winning for. There are so many moves here. Like if let's see the engine evaluation, it's mate in 3. Okay, it's like completely winning position. Just look at this. He just castle. बेचारे black ने अभी तो castle किया था. He just castle. He was like, finally my king is safe. And I was like, what? Okay. There's mate threat. Wait. I'll stop it. What? Again a mate threat. I was like, and White played a fantastic move to end the misery of black. Just take this. Simple idea. You're threatening mate here, or you are threatening mate here. यहाँ पे queen कहीं पे भी रख दो. And if he takes with the bishop, you just go check, and whenever the king moves, wherever the king moves, you can just checkmate. Check and wait. Oh, I think it could do it. Yeah, just it was the 18th move only. Only the 18th move, then. है ना? So now we see कि उस टाइम पे तो हमें लग रहा था ठीक है, these are like मे बी प्रॉब्ली ब्लैक को लग रहा हो कि ठीक है, इतने बड़ी मिस्टेक्स मैंने नहीं की हैं, बट लुक व्हाट हैपेंड। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा अटैक तो करा नहीं वाइट से, बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि अटैक करना है। आई जस्ट डेवलप्ड माई पीसेस जहाँ पे वो बिलोंग करते थे, सिंपल। और जब रुक को जरूरत पड़ी वो पहुंच गया। यस, ज़रूरत ही नहीं पड़ी खैर उसको, तो इसको ज़रूरत पड़ी थी, है ना। बट हम तो भाई ऐसे क्यों ही वेट करें कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम मंगाएंगे, तो 1 घंटा लग जाएगा, तब वो पेड़ वेड़ को हटाएंगे रास्ते में से, रोड को रिपेयर करेंगे, तब तो लेट हो जाएगी ना। अब पता नहीं होता है कब चाहिए नहीं चाहिए, बट हम ऐसा रिजर्व रखते हैं। घर में भी तो ऐसा होता है, हमें पता है कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स सबके पास होता है, ऐसा थोड़े ना आप डेली यूज़ उसको करते हो। इट इज़ फॉर पर्पज़ कि अगर जब ज़रूरत पड़े तो इंस्टेंटली आपके घर में हो, आपको बाहर कहीं स्टोर पे ना जाना पड़े, मेडिकल स्टोर पे आप भाग रहे हो, उसमें टाइम लग रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना।
तुम ऐसे रिजर्व में रख रहे हो अपने पास कि अगर अटैक में ज़रूरत पड़ी, इतने पीस सफिशिएंट नहीं रहे, आई क्विकली ब्रिंग द रुक यहाँ पे या यहाँ पे, है ना? सो इट्स लाइक दैट। सो आपको कैसे लगा ये गेम? जस्ट टेल मी योर। ऑसम। और वाइट, और जो वाइट खेला था उसको उससे भी ज्यादा अच्छा लगा होगा।